So hello my dear friends, I am again with all of you to raise up this remain session of chapter electricity. Here we will discuss about the next terms just we have to study. The chapter's topic are given here which are very important for the knowledge, for the treat, for the practical life and for our exams. Clear? So according to our syllabus, these are also important for CBSE and we have both. So now this is the time to keep more concentrate than previous video. Okay. So my dear students, let us start the class. And before I start the class, I just want to say again that you have just not to lose your patience during the video, because it may be that the video will go long, because the video can be short, because it depends on my mind then how to teach you. If I will teach in a very short video, then it may be that you cannot understand easily. So this is my responsibility to teach you very well with your will, intelligence, will, knowledge. So just don't lose your patience during the video and keep concentrate. If you have just a tension about that the video is going so much long, so you have just need to make interval. So guys, let's start the class. My dear students, will to study what electric potential, and in previous classes we have studied what the charges, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, etc. ठीक है. सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. ठीक है, ईपी. क्लियर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क डन है. क्या है? एक वर्क डन, यानी कि वो कार्य होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कार्य होता है. सपोज करते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था चार्ज के बारे में, कि चार्ज किसी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है. वो चार्ज क्या है? कि सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो क्या होता है, किसी स्पेसिफाइड पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी फील्ड में पोजीशन पे लाने पे वो क्या करता है, कोई फील्ड क्या फोर्स कोई फील करता था. जैसे कि ईएमएफ मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को प्लेस करने पर अगर वो कोई फोर्स फील करता है, then in that situation the force filled by that substance and that property is called what? Charge. So my dear student, just similar, जैसे ही उस सब्सटेंस को या फिर उस चार्ज को, क्लियर, यहाँ बात आती है उस चार्ज को जो कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट में यानी किसी रेफरेंस पॉइंट से है, इसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं कहाँ? किसी स्पेसिफाइड पॉइंट से, किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी स्पेसिफाइड पॉइंट तक किसको ले जा रहे हैं? चार्ज को. और उस चार्ज को ले जाने में जो काम होगा, जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो अगेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन to place out the charge from reference point to the specified point. Clear? This is called what? Electric potential. Without no doubt. So my dear students, we can also write it as well here. V, it is equal to what? V is equals to what? Work done. W by what you have to place? क्या place कर रहे हैं हम लोग? Charge Q. Clear? So this. Now we have to study 1 ampere and 1 volt also. So before study these all, I just want to remind yourself that we have studied electric current. Electric current हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं the flow of charge through a conducting wire. ठीक है, the continuous flow of charge through a conducting wire is called as what? What? Yes, very good. Electric current, जो कि क्या हम लोग डिफाइन कर रहे थे, एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे. वो फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला था. तो उसी तरह हमने बोला था कि I को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए. ठीक है, यूज कर रहे हैं यहाँ पे. क्लियर, और इसका ऐसे यूनिट क्या होता है? एम्पियर. क्या होता है? एम्पियर. सो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए 1 एम्पियर लगा दो. क्लियर, क्यू को क्या डिनोट करते हो ऐसे यूनिट? कूलम, टी को सेकेंड. ठीक है, तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज एट द रेट इन 1 सेकेंड. ठीक है, या फिर द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज
per second is defined as what 1 ampere. क्लियर. नेक्स्ट 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, तो अभी बताया V इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो V क्या होता है वोल्ट. क्लियर. ये वोल्ट हो गया. W क्या हो गया वर्क डन, वर्क डन क्या हो गया ऐसा यूनिट जूल, और Q का क्या होता है चार्ज यानी कि कूलम. क्लियर. तो 1 वोल्ट पूछ रहा है 1 जूल 1 कूलम. ठीक है. तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे. 1 volt is the electric potential which is defined as to the work done required as 1 joule. 1 joule का वर्क डन जब रिक्वायर होता है टू फॉर द मूवमेंट ऑफ 1 कूलम चार्ज. ठीक है. 1 कूलम चार्ज के मूवमेंट के लिए जब 1 जूल वर्क डन यूज होता है तो उस समय हम उसे क्या करते हैं 1 वोल्ट. क्लियर. So next, potential difference. What here it is? Potential difference. तो potential difference क्या होता है. क्लियर. कोई भी चीज डिफरेंस हमें निकालना रहता है तो हम दो पॉइंट्स के बीच निकालते हैं. ये तो आप अच्छे से जानते होंगे. जो पोटेंशियल डिफरेंस जानते हो ना कि दो पॉइंट्स के बीच हम लोग क्या निकालते हैं डिफरेंस निकालते हैं. क्लियर. तो सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज अ पॉइंट. These all points here which is here I am denoted. These are having what potential. सपोज कर लिया कि ये दो पॉइंट्स ए और बी है और इन दोनों पे क्या है पोटेंशियल भी है जो कि डिफरेंट है. ठीक है. तो इस पे जो पोटेंशियल हमने मान लिया वो क्या हो गया भी है, इस पे जो पोटेंशियल हो गया वो क्या हो गया भी बी. क्लियर. सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के पे जो पोटेंशियल होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज आल्सो टर्म्ड एज पीडी पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर. और जो सम होगा टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा VA माइनस VB. क्लियर. सपोज दैट यहाँ क्या है 5 वोल्ट और यहाँ क्या है 2 वोल्ट, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3 वोल्ट का. क्लियर. No doubt? No doubt. So next topic we have to study the direction of flow of positive charge and negative charge. Negative charge and positive charge के फ्लो का डायरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. कि यानी कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का क्या डायरेक्शन होता है सर और नेगेटिव चार्ज के फ्लो का क्या डायरेक्शन होता है. माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है. पॉजिटिव चार्ज जो कि क्या है पॉजिटिव है. ठीक है. वो क्या होगा वो हमेशा जो उसके कम होंगे उनको खुश रखेगा. ठीक है. यानी कि वो अपने नीचे स्तर को देखेगा. क्लियर. तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. पॉजिटिव चार्ज क्या होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज में. ठीक है. लेकिन नेगेटिव चार्ज का फ्लो कैसे होता है. यस यू आर राइट. व्हाट नेगेटिव चार्ज का फ्लो कैसे होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. वेरी गुड. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हम कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस पढ़ेंगे. सेल क्या पढ़ेंगे पहले सेल. सेल क्या होता है मैं बता दूं कि सेल एक क्या है इलेक्ट्रिक डिवाइस है. क्या है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस. ये ऐसा डिवाइस है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स के बीच केमिकल रिएक्शन होते हैं. क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन. और उन केमिकल रिएक्शन के थ्रू जाके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है. क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है. द डिवाइस थ्रू विच electric currents can be generated during the chemical reaction between two different electrodes. ठीक है. उसी डिवाइस को हम कहते हैं सेल. क्या कहते हैं सेल. क्लियर. सेल का जो सिंबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स एक कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है. यानी कि कैपिटल लाइन स्मॉल लाइन और दोनों ये जो वायर्स ये कनेक्टेड है. ठीक है. और ये कंडक्टिंग वायर का साइन होता है. क्लियर. कंडक्टिंग वायर. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. और तुम बता दूं कि ये जो कैपिटल इसको हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव से और जो स्मॉल उससे क्या करते हैं नेगेटिव से. क्लियर. अब आते हैं कि बैटरी क्या होती है. तो सेल एक बार रिपीट कर दे क्या होता है. सेल वो डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच. क्लियर. नाउ बैटरी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. बैटरी क्या होती है. बैटरी को कहते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ सेल. क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ
सेल, यानी कि जब बहुत सारे सेल जुड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, बैटरी। क्लियर। मैं स्टूडेंट्स एक और बात बता दूं कि सेल जो फर्स्ट सेल का डिस्कवर हुआ था वो 1800 में हुआ था और उस सेल का नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। क्या था, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। बैटरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, बहुत सारे सेल जुड़ेंगे यानी कि फिर बहुत सारे सेल जुड़े ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया क्या तुम्हारा, बैटरी। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ है, जैसे कहीं भी करंट आ रही है, बल्ब ग्लो कर रहा है कहीं भी, तो इलेक्ट्रिक सर्किट वहां पे है। क्लियर। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है और कोई डिवाइस ग्लो करती है या फिर वो वर्क करती है। क्लियर। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ थ्रू विच कैन इलेक्ट्रिक करंट पासेस। क्लियर। उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज सर्किट। ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया, ओपन सर्किट, और दूसरा क्या हो गया, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिससे करंट फ्लो नहीं करेगा, पास नहीं करेगा, हो गया ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। और क्लोज क्या हो गया, ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास करे। अब इन दोनों का भी सिंबल होता है, ओपन होगा तो वायर जो होगा, कंडक्टिंग वायर, वो एक दूसरे से अलग होंगे, यानी कि स्विच ओपन होगा। ठीक है ना, स्विच क्या होगा, ओपन होगा। और लैंग्वेज में तो क्या, स्विच ऑफ होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ओपन है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन है। ओपन यानी खुला है, ठीक है, और खुला यानी कि तुमने तार क्या किया, उनको जो अट्रैक्टेड थे उनको क्या कर दिया, तुमने रिपेल कर दिया, यानी दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो ये सिंबल होता है। क्लियर। क्लोज का होता है बउआ ऐसे। क्लियर, या फिर लाइन दिखा देंगे ऐसे। क्लियर, ये होता है क्लोज सर्किट का सिंबल। क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट। सो नाउ नेक्स्ट टर्म इज आमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में भी पूछता है और सीबीएसई बोर्ड से भी पूछता है। और एक्चुअली आप लोगों को भी अब क्या कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव ला दिया गया, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फैसिलिटी आप लोग में भी आ रही है, तो इससे भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। ठीक है, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक टर्म बता दूं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी आमीटर की तरह ही होता है, एक छोटा उसका यूनिट होता है। क्लियर। अब आते हैं आमीटर क्या होता है सर। आमीटर वो डिवाइस है, आमीटर क्या करो, एम्पियर, क्या है, एम्पियर। तो वो डिवाइस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड जिससे मेजर करते हैं, वो क्या हो गया, आमीटर। वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट पॉसिबल होता है। क्लियर। The device which is used to measure the magnitude of electric current, that device is called ammeter, and the device which is used to measure for the measurement of what potential difference, that device is called as voltmeter. Clear। ammeter जो होता है, वो जो डिवाइस है, वो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पाथ बनता है, उस पाथ में उसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इस सर्किट से पोटेंशियल यानी कि वोल्टामीटर जो होगा ऐसे कनेक्टेड होगा। ठीक है, और आमीटर जो होगा वो सर्किट में ही उसी में कनेक्टेड होगा। क्लियर। सीरीज में, सीरीज और पैरेलल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम लोग कुछ प्रूव भी करेंगे। क्लियर। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए आमीटर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक और मोस्ट डिफरेंस ये है कि आमीटर जो मेजरमेंट या फिर जो रीडिंग हमें प्रोवाइड करता है, वो एम्पियर के स्केल पे प्रोवाइड करता है। किस स्केल पे, एम्पियर के स्केल पे। वाइल वोल्ट मीटर जो होता है वो किस स्केल पे करेगा, वोल्ट के स्केल पे। क्लियर। नेक्स्ट, रेजिस्टर क्या होता है, तो मैंने लिख दिया टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टर वो डिवाइस है
या फिर देखे होगे तुम लोग, जो अपने डिवाइस में छोटे छोटे यूनिट होते हैं, जो सर्किट होते हैं, जो मदरबोर्ड्स होते हैं, कुछ इस टाइप के देखे होगे, ऐसे ऐसे पतले पतले, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टर। क्लियर। रेजिस्टर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। क्लियर, वो से कहते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी, जो कि हम लोग आगे बहुत यूज करेंगे माय स्टूडेंट्स। रेजिस्टेंस जैसे कोई कंडक्टर होता है जिससे कि करंट फ्लो करता है, जैसे कि आयरन से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उस सब्सटेंस में एक प्रॉपर्टी होती है, उस सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के पास करने को रोकता है। क्या करता है, रोकता है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है किसी कंडक्टर में, उस कंडक्टर की उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और ग्रीक वर्ड में इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, जिसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई गोला बना दो, इसको मिटा दो, दो लाइन ऐसे कर दे, या फिर सी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन OHM, ओम। क्लियर। इस वर्ड से भी रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में वीडियो में पढ़ेंगे, उससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, फॉर द एग्जामिनेशन व्यू। क्लियर, एंड नॉलेज ऑल्सो। सो नाउ व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम क्या होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आफ्टर प्लेसिंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टिंग वायर। जो कंडक्टिंग वायर होता है उसमें जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा उसका डिफरेंस जब 1 वोल्ट होगा, क्या होगा, 1 वोल्ट। सो ऑन दैट कंडीशन, जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो उसे हम डिफाइन करते हैं 1 ओम से, ठीक है। 1 ओम इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग द 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टिंग वायर। क्लियर। नेक्स्ट मेन टॉपिक्स ये भी है, फैक्टर ओवर विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टेंस जो होता है उसके कुछ फैक्टर होते हैं जो किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो होता है लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर एंड टेम्परेचर ऑफ वायर। एरिया को आप कह सकते हो थिकनेस भी। क्लियर, क्या कह सकते हो, थिकनेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सी हियर, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। क्लियर। या फिर रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, और एरिया ऑफ वायर इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्स में है, उल्टा हो रहा है। और एरिया डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। क्लियर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस, एंड बाय यूजिंग दिस वी आर जस्ट गोइंग टू डिफाइन रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता क्या है। क्लियर। आई एम जस्ट इरेजिंग दिस टॉपिक। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस का ही मेजरमेंट होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस of unit length and cross sectional area of conducting wire। conducting wire का cross sectional area और उसके unit length के जो मेजरमेंट होता है रेजिस्टेंस का, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। resistivity is defined as the measurement of resistance of unit length and unit cross sectional area of conducting wire. Clear? So now here I am just going to represent R is directly proportional to what, length, because length, unit length, and area we have to use. So other equation will be what, inversely proportional to cross sectional area. This is equation 1 and this is equation, another equation 2. Clear? Now we have to combine these two equations. What are these equations? R is directly proportional to L and R is directly proportional to 1, यानी कि inverse of area, या फिर inversely proportional to the area. Clear? मैंने यहाँ दोनों कहा, R is directly proportional to the inverse of area
या फिर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर थिकनेस ऑफ वायर। क्लियर? नाउ कंबाइन दिस इक्वेशन, तो आप क्या करो, आता है रेजिस्टिविटी के लिए भी आप क्या करो कि एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो, ठीक है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी या फिर फाइंड द व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो नाउ वी हैव टू कंबाइन दिस, सो वी हैव टू राइट हियर कंबाइनिंग दिस इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन जो उसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, R is directly proportional to L by A, क्योंकि L into 1 by A। क्लियर? अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ये हटता है, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया, तो इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, जो कि रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। क्या किसके नाम से जाना जाता है, रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, R इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टिविटी का हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया ना। सो अब हम इसका ऐसे यूनिट याद कर, यूनिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ बाय लेंथ इज इक्वल टू रो। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया, रेजिस्टेंस इंटू ब्रेड्थ। रेजिस्टेंस कैसे यूनिट क्या हमने लिखा था यहाँ पे, ओम, और ब्रेड्थ का मीटर। सो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया? सुनाओ, अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसको अच्छे से अपना फिर से रिवाइज करो, रिपीट करो, एंड अगेन इन सारे नोट्स को तुम अपने नोट्स से बनाओ, अपने लैंग्वेज में इसको लिखो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर स्क्रीन पर नंबर है, आप इस पे क्वेरी कर सकते हैं। क्लियर? एंड अगेन द नेक्स्ट वीडियो विल जस्ट कम सून, एंड नाउ द नेक्स्ट वीडियो विल आई हैव टू प्लान टू अबाउट मैथ्स। क्लियर? टू क्लीन ऑफ chapter 1, 1.3 and 1.4. This is similar just. So now keep concentrate over these all topics again. वीडियो लंबा लगे इंटरवल पे करके देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो। क्लियर? तो थैंक यू।